السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين تمام تعریف تو حمد و ثنا رب ذوالجلالس کنت بیسن بے شمار درود و سلام برذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہندس آلس تامت پتمس درسس مز پڑھو اسی کہ رب العالمین کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنز حوصلہ افزائی یا ان کی ڈھارس بندائی گئی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دل مبارک کو کیوں ان لوگوں کے لیے تنگ کرتے ہیں یم لوگ زن حقائق برونٹ کن ین باوجود دین اسلام قبول چھن کرن کی اور تہند یہ زن اس ونو تشفی خاطر آئے یم آیات نازل کرنے یت مزن اللہ تبارک و تعالیٰ پان اعلان کریو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گواہی دینے سے یا ان کے قبول کرنے سے یا نہ کرنے سے دین اسلام کی حقانیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور دنیا کی سب سے عظیم مخلوق بلکہ اس کائنات کی سب سے عظیم مخلوق جو ملائکہ ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور اولو العلم یعنی اس تمام کائنات کا جو سب سے اس کو ہم کہتے ہیں کریم تم تش دیون ام کتھ ہز گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے بہرحال ام پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سا عظیم الشان آیت انن یت مزن اللہ تبارک و تعالیٰ یم کتھ ہند اعلان کرن کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے وہ اسلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی قابل قبول دین ہے اگر کوئی معتبر دین ہے اگر کوئی نجات دہندہ دین ہے تو وہ کون ہے اسلام بہرحال ات آیتس پتمس آیتس سے جوڑ کیا جوڑ یہ ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اب اللہ کو معبود تصور کرنا اللہ کو معبود ماننا اس کی کون سی اصلی صورت ہے کیونکہ ہندو بھی اس بات کا یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا ہی دین برحق ہے اور ہم بھی دیوی دیوتاؤں کو اللہ ہی مانتے ہیں اللہ نہیں تو خدا مانتے ہیں اتھے پر آتش پرستی بظاہر عبادت کرنے کے بیچ اب وہ تو اسی کو خدا تصور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اعلان کر دیا کہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ ہی کو معبود ماننا اس کی صحیح اور اصلی شکل کون سی ہے وہ دین اسلام ہے باقی تمام یم طریق جن میں معبودوں کی یا باقی باطل معبودوں کی پرستش کی جاتی ہے وہ صحیح طریقہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک دین جو اللہ کے نزدیک ہے یعنی اللہ کے نزدیک مطلب کیا گو جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا جو کل اللہ کے ہاں نجات دلائے گا جو اللہ کی یہ زن خوشنودی کا باعث بنے گا وہ کون ہے الاسلام چیز یت مز یا دون نقطن پہ وضاحت ضروری ایک ہے دین اور دوسرا ہے اسلام دینک لفظ ام برو پورمت اس لیے سورہ فاتحہ پڑھو مالک یوم الدین
दीन लफ्ज यह कुरान पाकस में दोन मानान में इस्तेमाल आमुत खसूसी तौर पर इस्तेमाल करने। एक रोज़ी क़यामत के लिए या बदले का दिन, मालिक यौमिद्दीन तत कुस दिन, बदले का दिन, क़यामत का दिन। और आम तौर पर जो दीन लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है, सो गो इस्लाम खतर आमुत इस्तेमाल करने दीन। और ब्या कथ थो याद, ये कुछ जाए कुरान पाकस मज या कुन आयतस मज दीन तो इस्लाम इकट्ठे यी, तो इसके लिए उसूल उलमा ने लिखा है इज़्तमा तफर्रका, यम सातन यम युकट यन तब इनका माना अलग अलग होगा। और इद तफर्रका इज्तमा, यम सातन यम अलग अलग आसन तम सातन यमन माना सेम, यानी उस वक्त दीन इस्लाम के माना में ही इस्तेमाल होगा और इस्लाम भी किस माना में इस्तेमाल होगा, दीन के माना में। मगर ये कुन आयतस मज या कुन जाय कुरान पाकस मज युकट यन तब इनका माना थोड़ा बहुत तब्दीली युवन। बहरहाल वो तब्दीली क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये इकट्ठे आए हैं। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक जो दीन है वो इस्लाम है। गो अत आयत के टुकड़स में इकट्ठे आम, गो इनके माना में थोड़ा बहुत तब्दीली आएगी। सा तब्दीली क्या है, बहरहाल इसको समझना है। दीन युजन दीन की इस्तिलाही या डिक्शनरी मीनिंग क्या है अमिच, या शरीयतस मज क्या है अमिच मीनिंग। तो इसकी मीनिंग युजन उलमा लिखमज, इसका मतलब है अकायद का एक मजमुआ। दीन वन अकायद का एक मजमुआ, जिन मजमुआ पर एक आदमी ईमान लाता है और फिर इसी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता है। बताते फिक्र, मिसाल के तौर पर आख इंसान या बल्कि प्रथ इंसान यकीन कि अगर बह नारस मज अथ त्राव मेरा हाथ जल जाएगा। इथे पठन प्रथ इंसान यकीन कि अगर बह शुहिस मज या यखस मज अत्राव मेरे हाथ में या मेरा जो जिस्म है ये ठंडी महसूस करेगा। तो ये हमारा अकीदा भी है और तजुर्बा भी है। अगर अकिस इंसानस वनो, हालांकि उसने कभी हाथ आग में नहीं डाला है, मगर अगर भी तलसा त्रा अथ क्या नार त्रायस, क्यों? क्योंकि उसके जहन में ये बात बैठ गई है, उसके बड़ों ने ये तालीम की है, ये अकीद बन्योमत। अकीदा कहते हैं रासिख इल्म या ऐसा अकीदा जिमजन यकीन आज दिलस में। तो क्या ये ऐसा काम करेगा? नहीं। तो बिल्कुल यही बात दीन के बारे में है। अकायद का एक ऐसा मजमुआ जिस पर एक इंसान ईमान लाता है, और ईमान ही नहीं लाता बल्कि फिर इन अकायद के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता है। ये पर दईम सवाल कि अच्छे अकीद कि इस्लाम का अकीदा क्या है कि अल्लाह एक है, क़यामत का दिन आएगा रसूलुल्लाह के बरहक होने पर, मलाइका पर। यह फिर दूसरी बात है कि हमारा अकीदा इतना मजबूत है ही नहीं कि साई जिंदगी पे अमिक असरात मरतब गसन। अब यमन लुकन वाकई अत अकीदस पे यकीन तो पस अस, उनकी जिंदगी ऐसे ही गुजरती थी, तिमन जिंदगी पर असरात थी। इसीलिए सबसे ज्यादा जोर इस्लाम ने किन बातों पर दिया है? अकायद पर। ये अकायद मजबूत आसन अम से जिंदगी पे तिथि असरात, और इसके जहन से, इसके जिस्म से भी अमाल वैसे ही सादिर होंगे। यमिस इंसानस यकीन तो अकीद आस पुख्त कि मे पगह क़यामत दो अल्लाह ताला नोट जवाब दिन, क्या वो गलती करेगा? सह कर गलती जानित मानित कहें। यमिस यकीन आस शख्सस कि अल्लाह ही मेरा खालिक है, अल्लाह ही मेरा मालिक है, अल्लाह ही मेरा पालनहार है, क्या वो बाकी बातिल माबूदों के सामने अपने सर को झुकाएगा? ना। तवे शेतनस आमद इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यानी हकीकी अकीदन हिंद मजमुआ युजन, या वो अकीदा जो कल आपको मुनज्जी बनेगा, युस्तुहन नजातुक बाइस बन, जिसके मुताबिक आप अपनी जिंदगी बसर करेंगे, वो कौन है? इस्लाम। तवज मौलाना मौदूदन या अक्सर हिमजन आज मुफक्किर छ, उन्होंने दीन का तर्जमा किया है जिंदगी बसर करने का तरीका। असल में जिंदगी बसर करने का तरीका कहां से हासिल होता है या ये कहां से वसूल होता है? युस अकिस इंसान अकीद आस, असल में उन्हीं अकायद का नाम है दीन। और ये कहा कैसे याद था हुई, हर दौर में, हर जमाने में जितने भी अंबिया गुजरे हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, और रिवायात से साबित होता है कमोबेश 1,24,000 अंबिया आए हैं। बहरहाल जिमन सारनी हुंद अकीद युजन ओस, जिन अकीदों की तालीम इन्होंने दी वो अकीदे हर दौर में, हर अंबिया, हर नबी का एक ही था। गो यमन अकीदन हुंद मजमुआ क्या हो में ना आता? दीन। तो हर किसी नबी का दीन जो था वो क्या था? एक ही था, सोस अकई, और उस दीन का नाम है इस्लाम आमतौर पर। अब इस्लाम की डिफरेंस में अभी बताऊंगा।
गो प्रेथ कांस नबी सुन हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा और लास्ट पर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह, इन्होंने जो अकायद का मजमुआ पेश किया, वो अकायद का मजमुआ हर नबी ने एक ही पेश किया, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर नबी ने यह तालीम दी कि आपको आखिर पर मरने के बाद अल्लाह के सामने हाजिर होना। हर नबी ने यह अकीदा पेश किया कि मैं अल्लाह की तरफ से मबूस करदा पैगंबर हूं। तो इस अकायद के मजमुए को दीन कहते हैं, और ये दीन ओस न कांसी हुंद अलग, बल्कि हर नबी, हर युजन रसूल, उसने यही अकायद का मजमा लोगों के सामने पेश किया। तो हर किसी नबी का दीन क्या था? एक ही, सोस अकाई दीन। अच्छा, अब आगे चलते हैं, डिफरेंस में इस्लाम माने, लेकिन इस दीन को अपनाने का तरीका जो था, जिसे हम शरीयत कहते हैं, शरीयत आस मुख्तलिफ, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत यानी तरीका इस अकायद को अपनाने का वो डिफरेंट था। मूसा अलैहिस्सलाम से अलग, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अलग, नूह अलैहिस्सलाम से अलग। अब देखिए, आप मिसाल के तौर पर अकिस शरीयतस मज अख चीज हलाल, मगर बीस शरीयतस खतर आ सह चीज क्या करना हराम, या कह चीज कुन शरीयतस मज हराम, बीस शरीयतस आ क्या दिन हलाल। मिसाल दूंगा मैं, मिसाल के तौर पर अस पोर सूरह बकरा मज, जो बनी इसराइल की कौम थी, जो बनी इसराइल के नबी थे, उन्होंने अपनी उम्मतों को तालीम की थी कि असाब सबत का दिन आपके लिए हराम है, अम दो तिजारत कर, जो भी आप तिजारत करेंगे वो हराम है। यह अकिस शरीयतस पे हुक्म। मगर जब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, उनके लिए जुम्मा का दिन मुकर्रर किया गया। वह आइन सबत, ये यौम सबत, इसकी फजीलत खत्म कर दी गई। अब ये फजीलत किसको दी गई? मगर वहां पर भी अब उसमें थोड़ा सा तगय्युर और तब्दीली कर दी गई। तब्दीली क्या है कि आप तिजारत करोगे, आप कोई कारोबार करोगे, वो हलाल है। मगर लेकिन जब नमाज के लिए बुलाया जाएगा, बस अब आप कारोबार उस टाइम के लिए क्या करोगे? गो शरीयत मज क्या आए? तब्दीली। इथे पठनस हमने सूरह बकरा में ही पढ़ा, बुदिन तुम मिसाल यम पढ़, हमने पढ़ा कि यम जन बाकी कौम आस, खुसूसन बनी इसराइल की कौम जो थी, जब ये कहीं जहाद करते थे, जो माली गनीमत इनको वसूल होता था, इनको इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी, बल्कि योसमन बिल्कुल प्यावन कुछ मैदान में जमा कर, फिर आसमानी आग कोई आ जाती थी, वो उसको खा जाती थी, मगर यम गनीमत माल हकन इस्तेमाल कर। मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत पर यह इनाम और यह सहूलत कि आप गनीमत का माल भी क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते। गो शरीयतन मज गई तब्दीली। इथे पठनस कुछ शरीयतों में कुछ जानवरों के गोश्त तुम हलाल, मगर बाद की शरीयत में उन जानवरों के गोश्त को क्या कर दिया गया? ममनू कर दिया गया, या कराहत या हराम करना। गो इसलिए शरीयतें जो है ये तब्दील होती रही। अब याद रखिए, युस जन इस्लामुक लफ्ज, इस्लाम का लफ्ज निकला है सलामती से, इस्लाम के मज, और मुकम्मल अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर करना, मुती और फरमा बरदार बनना, अच वनन इस्लाम। यानी मुकम्मल पनुन पान खुदायस ब्रोट कन सरेंडर कर, तम सद अहकामन ब्रोट कन मुती तो फरमा बरदार बन, अच वनन क्या? अच वनन इस्लाम। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में हमने पढ़ा कि इज़ क़ाला लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुक्म किया कि अस्लिम क्या वो बन मुती तो फरमा बरदार, यानी इस्लाम का कबूल वो क्या, इस्लाम कबूल करना था, यानी मतलब था कि आप अल्लाह की इताअत करो और फरमा बरदारी। तो उनने क्या कहा? अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, बुशिस फरमा बरदारी कबूल कर रब्बुल आलमीन से। तो यहां से पता चला कि मुकम्मल और कामिल इताअत और कामिल फरमा बरदारी करना, यह है क्या? इस्लाम। अच्छा, इथे पढ़न 20 जगह कुरान पाक में आमद व अना अव्वलुल मिनल मुस्लिमीन, मैं सबसे पहले क्या हूं? इस्लाम कबूल करने वाला। युस इस्लाम कबूल कर, युस इताअत कबूल कर, फरमा बरदारी, तमिश वन क्या? मुस्लिम। और ये भी याद रखिए, ये मुस्लिम लफ्ज युजन ये हमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिया है। युजन इस्लाम मुस्लिम फरमा बरदारी तमिस युजन लफ्ज वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमें दिया, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फी हाज़ा। आपको ये जो जिसन नाव इस्लाम मुस्लिम, ये अल्लाह ने ही दिया, मगर मुशक्कस गो ये कत पे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से दौर ओस। बहरहाल हर दौर में इताअत और फरमा बरदारी के अलग अलग तरीके थे। प्रत कुन दौरस मज इताअत तो फरमा बरदारी हंद तरीके अलग। हजरत इब्राहिम हम लेते हैं मिसाल के तौर पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी बनकर, वो तो पहले ही ये शख्स गोडनुकुई इंसान थे, गोडनुकुई नबी, उनकी शरीयत में भाई और बहन का रिश्ता वो बिल्कुल हलाल था।
क्योंकि वही गुंजाइश थी। मगर बाद की शरीयत में फिर इसको क्या कर दिया गया, गो तम सातन हुक्म कि ये बोय हक कमिस सत निकाह। तो जब इस हुक्म आ गया, पत दयम हुक्म ना वह हक कर अमिस सह, तो अब इस हुक्म पर अमल करना यही उस वक्त का क्या बन गया, इस्लाम। गो हर दौरस मज रूज इताअत ते फरमा बरदारी हिंद तहरीक क्या रूद बदल। तो किसी दौर में किसी नबी की उम्मत में जो तरीका फरमा बरदारी का या इताअत का था वो उस वक्त का क्या था, इस्लाम। और इसी गो शरीयतस पे जन मुख्तलिफ शरीयत यम जन नबियन हिंज बने, वो मुख्तलिफ शरीयतें वही इस्लाम उस वक्त का था। सो तम वक्त क्या गो, इसका मतलब है अगर तक कथ फिक्र आमज तरमज, दीन रूद प्रेथ सातन प्रेथ नबी सुंद सैम। यानी दीन क्या मतलब है, अकायद का मजमा जो जिंदगी मुरतब करते हैं। अब इस्लाम क्या है, इस्लाम है हर दौर हर जमाने में इताअत और अल्लाह की फरमाबरदारी के तरीके बदलते रहे, जिसे हम शरीयत कहते हैं। और वही उस जमाने का क्या था, इस्लाम। सुई तम जमानुक मामूली फर्क है। असल में इस्लाम भी असल में माखूज किससे होता है, दीन से ही। तो यही अल्लाह तबारक व तआला फरमाते इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, जिंदगी बसर करने का तरीका या अकायद का जो मजमुआ है, जो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है, जो अल्लाह के यहाँ आपको नजात दिलाएगा या जो अल्लाह के यहाँ रजामंदी का आपके लिए बाइस बनेगा, वो कौन है, अल इस्लाम। जो वक्तन फवक्तन अल्लाह के नबी लाते रहे और आखिर पर कौन लाए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। गो युसर आज जिंदगी बसर करनुक तरीक या युजन मुतीत फरमा बरदार खुदाइस ब्रोंटे बननुक तरीक, वो कौन है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। और उसी का नाम क्या पड़ गया, इस्लाम। और याद के इस्लाम तिश मजहब या दीन रूदमुत तमाम अंबियान, अलबत्ता इसमें तब्दीलियां और तगय्युर होते हैं। दीनस मज गो तगय्युर तब्दीली, अलबत्ता इस्लामस मज या शरीयतस मज तब्दीली तो तगय्युर गसन। और ये थे याद, सबसे कंप्लीट फॉर्म में जो शरीयत दी गई वो कब आ गई, सारे लास्ट पे दिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। गो इससे पता चला इस्लाम में इर्तिका होता रहा, इस्लामस मज रोज डेवलपमेंट्स गसन, चेंजेस गसन, और आखिर पर कामिल सूरत में ये पेश किया गया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस पर शुक्र अमिक कारण कि हम इस कामिल शरीयत के अलमबरदार और इसके हामिल हैं। अल्लाह ताला फरमान इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन जो अल्लाह के यहाँ है। अल्लाह के यहाँ क्या मतलब क्या गो, यानी जो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगा, जो अल्लाह के यहाँ इताअत और फरमाबरदारी का सही तरीका है, जो अल्लाह के यहाँ कल हमें नजात दिलाएगा, जो अल्लाह के यहाँ उसकी रजामंदी का बाइस बनेगा, वो कौन है, अल इस्लाम, सुची इस्लाम यानी शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इस दौर में वमख्तलफल लजीना उतुल किताब, अब दोबारा वहां रुख की तरफ फिर गया उमन अहली किताबन को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल मुबारक गोमुत इंतहाई तांग ये ठुकराई दावत, उसके लिए कल की आयत उनके लिए तसल्ली आ गई। अब फिर से रसूलुल्लाह को तसल्ली दी जाती है। वमख्तलफल लजीना उतुल किताब, ये जो ये अहली किताब है, यमजनी में अहली किताब, इन्होंने इस दीन में इख्तिलाफ नहीं किया किसी दलील की बुनियाद पर। कुछ दलील हिंद बुनियाद पे इख्तिलाफ कर या इनकार कर दीनस, या रसूल आप मुतमईन रहिए रसूलस मज ये कुड़न मे वो रात खबर ये दीन गोवा उमन ब्रोट कन हुज्जत गया कायम उमन पे कन ब्रोट कन आवा असल पर दीन पेश करने कन। नबी को भी ये फिक्र रहती थी कि यस दावत में पेश कर अमुक हक अदा कोरा मैं 100% या कन। खबर मे मज रूज का कोताही कि मैं तो दीन उमन ब्रोट कन कारण पेश। तो अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए कहते हैं वमख्तलफल लजीना उतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्म बगयम बैनहुम। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने दिल मुबारक को तंग मत कीजिए इन लोगों के लिए। इन लोगों ने इस दीन के साथ इख्तिलाफ या ये हरदर्मी का या इनकार का रवैया इल्म आ जाने के बाद या हुज्जत कायम हो जाने के बाद ये नहीं है, यानी हुज्जत गई इन पे कायम। यह सब कोर इख्तिलाफ अम सब कोर इनकार क्या कि यमन क्या तर कत फिक्र, यमन क्या गई इस्लाम हकानियत वाजे क्या, बल्कि हकीकत क्या है, बगयम बैनहुम। ये इनकी अदावत है, ये इनका बुग़्ज़ अंदर दिलों में है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं। और हमने पिछले सूरत में भी पढ़ा है, सूरह बकरा में पढ़ा है कि बुनियादी वजह ये यहूदन बने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इख्तिलाफ करने, वो कौन सी थी, वो तो सिर्फ वो वजह थी, वो बुग़्ज़ था। वो चाहते थे कि ये आखिरी नबी भी किन में से होना चाहिए, बनी इसराइल में से होना चाहिए। मगर अल्लाह का करना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हो गए बनी इस्माइल में। ये सो बुग़्ज़
और ये अदावत थी जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत का उन्होंने इनकार। वरना सूरह बकरा में हमें पढ़ा है कि यारिफूनहु कमा यारिफूना अबना, ये आपको ऐसे पहचानते हैं, आपका नबी होना इन पर इस तरह से वाज़ह है जिस तरह ये अपने बेटों को पहचानते हैं। यानी पानु नेचु प्रेजान से कंस गसन तामुल है, लेकिन अल्लाह तबारक तआला फरमान कि ये उनकी जिद और अदावत थी जिसकी वजह से ये रसूलुल्लाह की इस दावत का इनकार करते। यतन क्या आओ, और मैंने पहले दिन आपसे कहा था सूरह आल इमरान में कौन सी खिताब ज्यादा, नसारा से, वहां यहूद से था, यहाँ दोनों को मिलाकर अहली किताब कहते हैं, इसलिए यहाँ पर अहली किताब का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। अगरचे खिताब इस आमुत ये अहली नजरान बापत उनसे है, मगर अहली किताब को मिलाकर इसलिए कहा गया कि ये बेमारी दुश्मनी में ये यहूद में भी थी और नसारा में भी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढारस बनाई जाती है, उनकी वो हौसला अफजाई की जाती है, या तुम तसल्ली दिन कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात वाज़ह हो जाने की नहीं है, बात दलाइल से कायल होने की नहीं है, बल्कि दलाइल इन पर ये कायल हो गए हैं, इन पर हुज्जत भी कायम हो गई है, मगर ये इनकार अपने अनाद और अपने बुग़्ज़ की वजह से करते हैं। और ये बड़ बार बेमारी आज किस दौरस में थे, यह हमारे लिए भी अक्यशवन एक लम्हा फिक्रिया है और हमारे लिए नसीहत भी है। आज तक ये बिल्कुल मामूल रोदमुत, अगर गामों का मौलिया मुफ्ती बाज रिक्शन अमिस ईमान है क्या गामों को सामत वन पे, या हम में से भी अगर कह बचे कुछ लो घरानों का कथ वन दीन तमिस पता यह हाँ अगर सेठ कह वन अगर कह बड़े घर वन तेल कथ। तो यह हमारे लिए भी तरबियत की यह बात है कि दीन की बात कोई भी पेश करे, जिस पर हम हुज्जत कर है ना यह गए बनी इसराइल में हम में भी यह आई, हाँ यह सईद खानदान यह बड़े खानदान ये हम में भी आए, लेकिन हकीकत हाल यह है असल में देखना चाहिए कि दीन की दावत पेश हो रही है, ये कौन कर रहा है वहां की तरफ देखना नहीं चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमान कि ये उनकी अदावत की वजह से है कि ये इख्तिलाफ करते हैं। वमन यकफुर बि आयातिल्लाह, तो अल्लाह ताला फरमान अब इनको खबरदार किया जा रहा है, किनको, इन अहली किताब को खुसूसी तौर पर। वमन यकफुर बि आयातिल्लाह, जो कोई अल्लाह की आयात का इनकार करेगा, यानी हकाइक और दलाइल वाज़ह हो जाने के बाद फिर भी अगर कोई अल्लाह की इन आयात का इनकार करता है, फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। यानी यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खिताब किया जा रहा है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनके लिए परेशान मत हो जाइए, या आप इस फिक्र में मत लग जाइए कि अल्लाह क्या मन अजाब दिवन, खुदा क्या मन पकड़ पकड़ कर लाता है अपनी दीन की तरफ। आप उस बात की परेशानी और आप उस बात की फिक्र करना छोड़ दीजिए। अब फ़इन्नल्लाह वमन यकफुर बि आयत, जो कोई अल्लाह की आयत का इनकार करता है, यार साहब खूब समझ लीजिए, इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द इनका हिसाब लेने वाला, यानी इनका मामला पूरा होने वाला है बहुत जल्द, कि जब आप देखेंगे दुनिया में भी ये मगलूब हो जाएंगे और आखिरत की रुसवाई और आखिरत का हिसाब वो तो अलग से उनके बहरहाल जिम्मे ही है। अल्लाह तबारक व तआला उनको वहां पर भी इनका मजा चखाएगा। अम पे ब्याक आयत अथ मजमून से ताल्लुक थान, इंशाअल्लाह मुस्तान कल हम उसको भी करेंगे मुकम्मल, और 9 रुकू अत पे गए शुरू, वहां भी पढ़ेंगे हम। वस ताम मज आए अत मज अहली यम जन बेहतरीन लुक तकवा वाले लुक, तुमन हिंद क्या सिफात पढ़े ना तुम सादिक कानित। कल हम पढ़ेंगे वो लोग जो अल्लाह के बागी होते हैं, उनकी क्या सिफात होती हैं। रब्बना के जिंदगी थो इंशाअल्लाह रहमान रब्बुल आलमीन मगो दुआ कि सुदीन कुरान चे निमन तालीमात में अमल करने तौफीक व आखिर दावाना।